اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ، اور درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے مارنگ لانگو۔ یہ لانگو قبیلے کی ہے، یہ بلوچ نہیں ہے، یہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، بلوچستان میں رہ ضرور رہے ہیں، بلوچ نہیں ہیں۔ اور یہ اس پہ بات ہوگی، اور یہ اختر مینگل بھی ٹیم کے طور پہ سامنے آیا ہے، اس پہ بات ہوگی، اور کتنا بڑا یہ سردار غدار ہے اس پہ بات ہوگی۔ اور وہاں پہ جتنے بھی پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں یا ان کا بینک اکاؤنٹ دیکھیں تو خربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ ملک کا سودا کیا ہے، ایمان کا سودا کیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو عید مبارک۔ آج کے عید کا دن مبارک دن ہے، آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک، اور اللہ تعالیٰ ایسی لاکھوں کروڑوں عیدیں آپ سب کو قبول، آپ سب کو نصیب کرے۔ اور کوشش کریں کہ فطرانہ اگر نہیں دیا تو لازمی دے دیں، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یا عید کے بعد بھی اگر دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن دیں ضرور۔ دینا کس کو ہے؟ اپنے سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں جو کمزور ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کو دے دیں، ضروری نہیں بتا کے دیں، ویسے ہی دے دیں۔ اور اس کے بعد محلے میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، اور پڑوسیوں میں دیکھیں جو غریب ہے، کوئی حالات جس کے بہتر نہیں ہے، اس کو دے دیں، نہیں تو پھر مدرسے کو دے دیں۔ مدرسے میں جس میں بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے۔ یہ پیشہ ور جو لوگ ہوتے ہیں نا، مانگنے والے، ان کو فطرانہ نہیں لگتا، ان کو نہ دیا کریں، ویسے ان کی مدد کر دیا کریں، میں نہیں منع نہیں کرتا ہوں، میں خود بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن فطرانہ ان کو نہیں لگتا ہے، کیونکہ وہ اچھی خاصی دیہڑ لگا کے جاتے ہیں، 2500-3000 روپے کی، اس سے زیادہ کی بھی بعض لوگ دیہڑی لگاتے ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کے مارنگ لانگو کے بینک اکاؤنٹ بھی پکڑے گئے ہیں جس میں خربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اس کا 76 کروڑ روپے کا بنگلہ پکڑا گیا ہے کراچی میں۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ وہ جو دوسری عورت ہے اس کے بھی اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں۔ یہ سب ایک ہی کچا چٹا ہے، یہ ہو گئے اختر مینگل ہو گئے، یہ باقی بلوچ سردار ہو گئے، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور یہ سب کے سب غدار ہیں، غداروں کا ٹولہ ہے، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ، عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ۔ اور جو بھی کوئی بلوچ دعویٰ کر رہا ہے نا گوادر پہ، گوادر ان کی ماں جہیز میں نہیں لے کے آئی تھی، وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دبئی کو اس کو پوری پیمنٹ دے کے نا تو خریدا ہوا ہے قطر سے، قطر کو پوری منہ مانگی قیمت دے کے خریدا ہوا ہے۔ کس نے؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے، کسی بلوچ نے نہیں خریدا ہوا ہے، یا بلوچوں کی ماں جہیز میں نہیں لے کے آئی ہوئی ہے۔ سب بلوچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو غدار بلوچ ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ٹوٹل 4% ہے، 96% بلوچ ملک کے وفادار ہیں۔ یہ جو نئی نسل اٹھی ہے نا، غلیظ گندی نسل جس کا ایمان ہی پیسہ ہے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، یا یہ غلیظ سرداروں کی بات کر رہا ہوں جو پیسے کے لیے، ڈالروں کے لیے اپنی ماں کا بھی سودا کر دے، یہ وہ نسل ہے۔ اس میں عمران بھی شامل ہے، اس میں یوتھڑ بھی شامل ہیں، اس میں وہ غدار سردار بھی شامل ہیں، اس میں میرنگ لانگو بھی شامل ہے، اس کا باپ بھی شامل ہے جو جہنم واصل ہو گیا ہوا ہے۔ وہاں پہ بھی فرشتے اس کو گرم کر کر کے سیخیں لگا رہے ہیں کہ 40 مسلمانوں کو، 40 بے گناہ مسافروں کو
पंजाबियों को उसने कत्ल किया हुआ था, उसने खुद एतराफ़ किया था कि मेरा इंतकाम ना लेना अगर मैं मर गया तो, क्योंकि मैंने 40 पंजाबी मारे हैं। भाई पंजाबियों ने तेरी माँ को, मैं कुछ अब रोजे की हालत में कुछ नहीं कहता, उन्होंने क्या किया था? वो तो वहां मजदूरी करने जाते थे। तुम लोग जो पंजाब में बैठे हुए हो, कोयटा बलोचिस्तान होटल बना के यहाँ पे कारोबार कर रहे हो, यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो। हमने कभी, पंजाबियों ने इतना बड़ा दिल रखा हुआ है। पठान भी यहाँ पे सबसे ज्यादा अक्सरियत पठानों की और बलोचों की पंजाब में कारोबार कर रहे हैं। हमने उनको सीने के साथ लगाया हुआ है और इंशाल्लाह आगे भी लगाएंगे। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि तुम लोग हमारे पंजाबी जो वहां पे जाएं तो उनको कौन होते हैं वो गरीब लोग? कोई नाई होता है, कोई मोची होता है, कोई कानों में काम करने। खुद तो तुम इतने बुजदिल हो, किसी कान के अंदर जाओ ना, जाके दिखाओ। ये पंजाबियों का ये हौसला होता है कि वो वहां अंदर जाते हैं, जाके काम करते हैं। हर मुश्किल काम पंजाबी करते हैं, कभी हिजरत भी नहीं की, कभी डर के भागे भी नहीं। इंडिया के साथ जितनी भी जंगें लड़ी, ये सियालकोट बॉर्डर पे पंजाबी लड़े हैं, कभी नहीं भागे, ना कभी हिजरत की। तो तुम लोग अगर बहुत बहादुर अपने आप को समझते हो तो अफगानिस्तान से क्यों भाग के पाकिस्तान आए और यहीं पे फिर जम के रह गए हो? वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। 31 मार्च तक अगर जो अफगानी वापस नहीं जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको अरेस्ट करेगी, उसको जेल में डालेगी और उसको जबरदस्ती डिपोर्ट किया जाएगा यहां से। अब वो खत्म हो गया है। हम लोगों ने जो मेहमान नवाजी करनी थी ना, वो कर लिया है और उसका नतीजा भी हमने भुगत लिया है। तो अभी भी टाइम है, इससे पहले कि पंजाबी जाग जाएं, पंजाबी आप लोगों से नफरत करना शुरू हो जाएं, अभी भी टाइम है। अपने आप को इन दहशत गर्दों को से अलग करो और पंजाबियों के साथ जैसे पंजाबी तुम लोगों के साथ कर रहे हैं, ऐसे ही करो तुम लोग भी। जैसे हमने तुम्हें सीने से लगाया हुआ पठानों को और बलोचों को, ऐसे ही तुम लोग भी हमारे जो यहाँ से गरीब जाते हैं वहां पे उनको सीने से लगाओ। उनको गोलियां नहीं मारो, शनाख्त कार्ड देख के बसों से उतार उतार के नाहक उनका खून बहाने वाली को ये मरदूद कह रहा है कि वो हमारी लीडर है, ये अख्तर मैगल गद्दार। ये सब का सब गद्दारों का टोला है। जितने भी सरदार इस वक्त पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, बाहर के ममालिक में बैठे हुए हैं, सब के सब गद्दार है। इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इन सबको अल्लाह ताला दुनिया में भी निशान इबरत बनाएगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह निशान इबरत बनाएगा। इनका वो असर होगा कि लोग कानों को हाथ लगाएंगे। बस ये ईद तक सब्र कर जाएं, ईद के बाद देखिएगा इनके साथ होता क्या है। एक अहम खुफिया इजलास हुआ था, एक अहम इजलास हुआ था, उसमें बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं। ईद के बाद ये सब के सब अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। इनकी नस्लें भी याद करेंगी कि हमें कोई हाफज मिला था, कोई अली का शेर मिला था, कोई फातिमा का लाल मिला था, कोई शाह शम्स तबरेज की नस्ल में से कोई मिला था, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से कोई मिला था, जिसने गद्दारों को चुन चुन के जानम वासल करना है और इंशाअल्लाह करेगा। और इसकी हिफाजत कौन कर रहा है? इसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है। इसको इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। ये 20 साल तक ये इधर या 30 साल तक ये नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को लिख के देने को तैयार हूं इंशाअल्लाह, क्योंकि इसी ने सी पैक कंप्लीट करवाना है, इसी ने ग्वादर पे एक्टिव करवाना है, ग्वादर पोर्ट को, और इसी ने सारा निज़ाम यस करना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे और आगे बहुत आसानियां हो जाएंगी। तो इसके साथ ही मैं ये अहम वो इलाक था, मैंने आप लोगों को बताना था कि खुदारा अपने बच्चों को समझाएं, बैठा के नई ये गंदी गलीज नस्ल को समझाएं कि ये तुम सबका बाप का देवड़ा है, ये मुसलमान नहीं काफर है। मैं आइन में, पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि ये काफर है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता है। तो जो ना माने वो तो काफर है, कुरान खुद कह रहा है।
क्योंकि नबूवत का दरवाज़ा तो बंद हो चुका है, क़यामत तक अब कोई नबी या पैगंबर नहीं आएगा। तो इसके साथ देखें किस तरीके से ये, हाँ, बात कर रहा था मैं मीडिया की। मीडिया पे जो यूथड़ आके ना फौज के खिलाफ कुत्ते की तरह भौंकते हैं ना, अब उनको भी नकेल डालने का टाइम आ गया है। उनको चाहे वो मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर हैं, उनके ना सिर्फ शनाख्ती कार्ड कैंसिल होंगे, पासपोर्ट कैंसिल होंगे, डोमिसाइल कैंसिल होंगे, और बाहर जो नेशनलिटियां लेके बैठे हुए हैं ना, उनको भी हर साल बाद डोमिसाइल देना होता है। जब वो नहीं दे सकेंगे, उनको वहां पे किक मार के वो वापस भेजेंगे, और यहाँ पे एयरपोर्ट पे ही FIA उनका इस्तकबाल करने को तैयार बैठी होगी। मैंने 3-4 यूथड़ों का बताया था आप लोगों को, जो कुत्ते की तरह भौंक रहे थे ना, अब वो जेल में बैठे हुए हैं, रोटियां तोड़ रहे हैं। अब वो सुकून, बिल्कुल सुकून से हैं। उनकी वो लितर परेड हुई हुई है ना कि उनका पिछवाड़े से खून चल रहा है, वो हाल हुआ उनका। तो अगर बाकी यूथड़ कौम अगर इस अंजाम से बचना चाहती है तो फौज के खिलाफ भौंकना बंद कर दें, मुल्क के खिलाफ भौंकना बंद कर दें, और अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार है ना इमरान नियाजी से, तो इसको घर ले जाएं। किसी पठान को बहुत ज्यादा प्यार है तो वो घर ले जाए, इसको रिश्ता भी दे दे, हमें कोई एतराज नहीं। किसी बलोच को अगर इससे बहुत प्यार है, वो इसको अपने घर ले जाए। किसी अफगानी को एतराज है, वो अपने घर ले जाए, हमें कोई एतराज नहीं। अपनी अम्मी पेश करे या कोई और पेश करे, हमें कोई एतराज नहीं। तो खुशी का मौका है, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूर किया गया है। तो खुदारा अपनी औलाद को बचाएं, अपनी गंदी नस्ल को बचाएं, उनको समझाएं कि ये जो तुम्हारा बाप है ना हाफिज सैयद आसिम मुनीर, ये तुम लोगों को जन्नम वासल करके छोड़ेगा इंशाअल्लाह। और अब मुल्क हमारा तरक्की करेगा। ईद के बाद एक ऐसा जबरदस्त ऑपरेशन शुरू हो रहा है ना कि जिसमें एक भी यूथड़ नहीं बचेगा। एक कहे ना, एक ढूंढने से भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह सारे के सारे। तो इसके साथ ही अपने बच्चों को पे ख्याल रखें, नज़र रखें, और उनको बचाएं, उनका मुस्तकबल बचाएं, वरना उनका डोमिसाइल, उनका शनाख्ती कार्ड, उनका पासपोर्ट, उनका स्कूल का सर्टिफिकेट सब कैंसिल हो जाएंगे, और वो फिर सड़कों पे झाड़ू फेरेंगे या गटर साफ करेंगे। यही 2 काम उनके पास रह जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, और मेरी तरफ से एक मरतबा फिर आप सबको, आपकी फैमिलियों को ईद के मुबारक, और अल्लाह ताला ऐसी लाखों करोड़ों ईदें नसीब करे, और अल्लाह ताला आप सबको की तमाम इबादत कबूल करे, दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। आमीन सुमा आमीन।